Today we are going to start a new unit of 11th class, that is human physiology. That is human physiology. This is our new unit of today's class. See, here are two words are given. First one is human, as we know, means living component, living organisms, right? In the category of animal kingdom. While this one is the physiology, it is the main important word, right? Humans means हमें पता है यहाँ पे कि हम physiology, हमें physiology we should know the means of actual means of the physiology. और बात किसकी हो रही है? Human beings की हो रही है. That's why it will be considered as what human physiology, right? If I talk about the human physiology, then one scientist was there and his name was Jean Fernel, right? एक scientist थे, right? German scientist थे actually. He was a physician, and the name of that scientist was Jean Fernel, right? This scientist generally gave this term, right? This scientist Jean Fernel, he gave the term what? फिजियोलॉजी. सबसे पहले इन्होंने ही इस टर्म को दिया था फिजियोलॉजी की, ठीक है. According to him, this physiology word was taken by a Greek word, ठीक है. और उस ग्रीक वर्ड में इस फिजियोलॉजी का मीन्स होता है टू स्टडी ऑफ नेचर, ठीक है, टू स्टडी, ठीक है, ऑफ नेचर. लेकिन यहाँ पे नेचर में ही आते हैं ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ नेचर, राइट. सेकेंड थिंग, फिजियोलॉजी इज कम्प्लीटली, अगर हम इसकी बात करते हैं कि जो ह्यूमन, हम यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहे हैं ना, फिजियोलॉजी है, ये इन्होंने फिजियोलॉजी का मतलब दिया था कि फिजियोलॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी ऑफ नेचर की बात हो रही है, ठीक है. यहाँ पे एक वर्ड ऐड हो रखा है ह्यूमन मीन्स, यहाँ पे कम्प्लीटली स्टडी ऑफ नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, ठीक है. तो उसे क्या कहा जाएगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, ठीक है. तो नाउ अकॉर्डिंग टू साइंस, राइट, या अकॉर्डिंग टू, क्योंकि ये क्या है, या वी कुड से अकॉर्डिंग टू जीन फेर्नेल, राइट. व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है. क्या है ये? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द ब्रांच किसकी, बायोलॉजी की है, ब्रांच है बायोलॉजी की, right? Branch of biology in which, ठीक है, in which the study of, right? Study of, basically scientific study है इसमें, ठीक है. कैसी वाली स्टडी है? साइंटिफिक, क्योंकि साइंस की ही ब्रांच है ये. That's why scientific study of what? Functions, right? And mechanism of living organisms, so it will be considered as what? Human physiology. Scientific study है functions की and mechanism की of living organisms की. और यहाँ पे जो हम living organisms consider कर रहे हैं, that will be what? Human beings, right? तो means simply हम ये कह सकते हैं human physiology means the study of functions and mechanism inside the human being, ठीक है. और in a living system we'll consider as what? Human physiology. Clear? अब हम बात करते हैं कि what will be the main focuses. Human physiology की ही हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो human physiology होगा उसके main focus किस किस पर रहेंगे, ठीक है. Here we could write what will be the main focuses in human being, right? Main focus is in human being, ठीक है. कि क्या क्या यहाँ पे जो फोकसेस रहेंगे ह्यूमन बींग्स के, ह्यूमन फिजियोलॉजी के इनसाइड द ह्यूमन बींग्स. सी, दे विल बी, क्या रहेगा? सबसे पहले हम यहाँ कहेंगे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, राइट. कंप्लीट ऑर्गेनिज्म पर इसका फोकस रहेगा, ठीक है. कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के अलावा ऑर्गन सिस्टम पर फोकस रहेगा. किस पर? ऑर्गन सिस्टम पर फोकस रहेगा. एंड देन लेटर ऑन ओनली वन ऑर्गन, और वी कुड से ऑर्गन्स पर, राइट. सिंपली हम ये कह सकते हैं सिंगल एक ऑर्गन पर फोकस रहेगा, राइट. एंड देन सेल पर फोकस रहेगा, एंड
बायोमोलिक्यूल्स पर भी फोकस रहेगा, एंड बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये एक सेल जो बायोलॉजी है उसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से एक ह्यूमन बींग्स का फॉर्मेशन होता है। देन वी नो वेरी वेल these biomolecules are the essential parts to form a cell, right? And whenever the grouping of cell will be there, then they will they will be formed into they will form what? Tissues, right? And tissue will form organ, then organ will together, whenever they will be having the togetherness, then they will form the organ system, and then later on the complete organism will be formed, right? So in the same pattern, human physiology focuses in the human beings mainly on these aspects, right? Complete organism means complete human beings के बारे में भी हमें बताती है। एक हम organ system की बात कर सकते हैं, right? Means this also has a focus on the organ system, then only about the single organ, then about the cell and the biomolecules also, right? Now, now the classification, and we could say how many the different branches of physiology. It is what? Human physiology, and we had just discussed about the physiology only, right? Physiology का means होता है study of nature, and human beings are also the part of nature, right? So here we are discussing about the classes of physiology, right? Simply classes. So what will be the different types? We could say the different classes of physiology, right? So first one is, we could say physiology where it can be used. It can be used in the field of medicine. So the medicinal physiology. It will be what? Medical physiology we could say, and medicinal or medical physiology, right? Now the second one is another type of branch of physiology. That one is that completely relate with the study of animals, right? It means study of nature of animals. So that will be considered as what? Animal physiology. So human physiology is the branch of this animal physiology. And same will be the case of another plant, right? So that will be considered as what? Plant physiology, right? And same means either they are the animal or they are the plant, but they will be consisted by the cell. So cell will be the structural, basic, fundamental unit of their formation. So next one will be known as, will be concerned about the cell physiology, right? Cell के बारे में simply. Although it is a part of, we could say कि हम यहाँ पे cell physiology को complete study करते हैं cell biology के अंदर में, but it's a brief related with them only, ठीक है? Now the fifth one is, here I'm writing this another type, only last type, that is what? Comparative physiology. This is what? Comparative physiology, right? So comparative physiology has another two type of branches, and these two branches will be known as, first one is evolutionary physiology, and while first one is evolutionary physiology. So this comparative physiology has two main branches, evolutionary physiology and environmental physiology, right? Now we had discussed the brief description about the human physiology, right? Actually स्टार्टिंग से हमने फिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा डिस्कस किया है, बट फिजियोलॉजी में यहाँ पे जो एनिमल फिजियोलॉजी है, वी हैव डिस्कस, वी विल हैव टू डिस्कस अबाउट दिस वन इज, एंड human physiology is the sub-branch of sub-category of this animal physiology, right? So it was a brief introduction phase of this human physiology, and what we have to study in the human physiology is mainly the first chapter, because ये क्या है, last unit है 11th class की biology की, right? And in which the first chapter will be, which will have to be read, that one will be digestion and absorption, right? So now we will discuss about the digestion and absorption. हम जो स्टार्ट करेंगे वो फर्स्ट चैप्टर होगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी वाज द यूनिट. नाउ द फर्स्ट चैप्टर विल बी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, राइट? हम पढ़ रहे थे क्या, ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो ऑब्वियसली बात है कि हम यहाँ पे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस भी किसका पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन बींग्स का पढ़ने वाले हैं, राइट? तो जितने भी एनिमल्स होते हैं, हियर आई एम राइटिंग अबाउट ऑल द एनिमल्स, नॉट ओनली द human beings, right? All the animals are heterotrophs. They all are heterotrophs. सभी के सभी जो एनिमल्स होते हैं
इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है heterotrophic nutrition. So on the behalf of that they are considered as what? Heterotrophs, right? तो यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ सिंपली ह्यूमन बींग्स के बारे में, then human beings are also what? Heterotrophs होते हैं. And which type of mode of nutrition they follow in the heterotrophs? क्योंकि heterotrophs में भी कुछ classes होती है. Either the organisms they are obtaining their food from the dead and decaying organisms, then they will be considered as what? Saprotrophs. अगर वो किसी एक लिविंग होस्ट के साथ में कांटेक्ट में रहते हुए उनसे अपना फूड गेन कर रहे हैं, then they will be considered as what? Parasites. And if the complete means we could say that the complete food molecule is being inside the cell or a whole body, right? या हम ये कह सकते कि whole solid biomolecules is being inside the cell, then this type of nutrition will be considered as holozoic mode of nutrition. तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं दे आर इन द कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स वेयर दे आर द हेटेरोट्रॉफ्स. वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं जो कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स का ही सब पार्ट है, दैट इज व्हाट? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये किसको फॉलो करते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, राइट? अब हम बात करते हैं कि चाहे वो एनिमल्स है या फिर वो ह्यूमन बींग्स हैं, राइट? दे ऑब्टेन, ये अपना फूड गेन करते हैं, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात लिख रहे हैं, हेटेरोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, राइट? सो दे ऑब्टेन देयर फूड, ये अपना फूड कहाँ से गेन करते हैं? तो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं आइदर दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, या तो इनको अपना फूड कहाँ से चाहिए होता है? प्लांट से गेन करते हैं. इन द फॉर्म ऑफ, हम कह सकते हैं कि बहुत सारे सीड्स के फॉर्म में, राइट, ग्रेन्स के फॉर्म में या जूसेस की फॉर्म में, फ्रूट्स की फॉर्म में हमें किससे फूड मिलता है? प्लांट से फूड मिलता है. दूसरा हम किससे भी गेन करते हैं? एनिमल्स, राइट, एंड देयर प्रोडक्ट, या तो एनिमल्स, राइट, और साथ साथ में उनके जो प्रोडक्ट्स हैं तो उनसे भी हमें क्या मिलता है? फूड मिलता है, ठीक है? तो ह्यूमन बींग जनरली दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स एंड देयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स. उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनसे भी वो क्या करते हैं? फूड को गेन करते हैं, ठीक है? यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, व्हाई डू दे ऑब्टेन, व्हाई डू दे नीड फूड, ठीक है? फूड में क्या है? हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये क्या गेन कर रहे हैं? एक तरीके से न्यूट्रिशन गेन कर रहे हैं, ठीक है? ये क्या है? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस, है ना? ये न्यूट्रिशन मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है. न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है. किसकी प्रोसेस है? प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनसाइड द लिविंग बॉडी, ठीक है? तो ये क्या है? प्रोसेस है. न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस. प्रोसेस ऑफ व्हाट? प्रोसेस ऑफ इनटेक, राइट? प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइट? प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइट, बाय एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है? तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं. यहाँ पे एक वर्ड लिखा है मैंने, क्या? न्यूट्रिएंट्स, राइट? तो इस न्यूट्रिएंट्स को हम लोग क्या करते हैं? गेन करते हैं. वी नीड टू दीज न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स मीन्स हम कह सकते हैं फूड, राइट? न्यूट्रिएंट्स और वी कुड से देम दे आर फूड, राइट? फूड की या न्यूट्रिएंट्स की हमें जरूरत क्यों होती है? वेरी सिंपल, राइट? क्यों? फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट? So they are needed by an organism just to growth and development of their body organs and their body, ठीक है? तो यहाँ पे हमें इसकी जरूरत क्यों होती है? Just to grow, right? एक तो ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है? डेवलपमेंट किसका हो? बॉडी का हो, ठीक है? डेवलपमेंट. तो इसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फूड की रिक्वायरमेंट होती है. न्यूट्रिएंट्स और फूड की हम बात कर रहे थे, ठीक है? सेम नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये तो हमने पढ़ लिया, ये प्रोसेस थी, एंड इन दिस प्रोसेस these nutrients and foods were taken inside the organism by an organism, जिसकी जरूरत उनको किसके लिए होती है? अपनी बॉडी को ग्रोथ कराने के लिए या डेवलप कराने के लिए उनको न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? अब देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस डिटेल करेंगे बिफोर स्टार्टिंग दिस डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कि ये क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. मेनली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे आर कैटेगराइज्ड इन 2 कैटेगरीज. ऑलवेज रिमेम्बर जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है. और वो कैटेगरीज जो है कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. फर्स्ट वन इज व्हाट? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. एंड देन द सेकंड वन इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. देखिए
मैक्रो मीन्स होता है बड़ा, लार्ज, एंड माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, ठीक है। और बात हो रही है किसकी, न्यूट्रिएंट्स की। इनके आगे वर्ड लगा हुआ है न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स का मतलब है फूड। और फूड में क्या प्रेजेंट्स होते हैं, द मॉलिक्यूल्स विच विल बी required by an organism just to growth and development of their body. They will be required by an organisms either will be in the small or in the large quantity, ठीक है। या तो ये न्यूट्रिएंट्स एक ऑर्गेनिजम्स को उसकी बॉडी के लिए ज्यादा अमाउंट में चाहिए, या तो फिर कम अमाउंट में चाहिए, तो उनके बिहाफ पे ही इन न्यूट्रिएंट्स को कैटेगराइज किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो क्लासिफिकेशन लिख रही हूँ, इसका मतलब है कि न्यूट्रिएंट्स आर कैटेगराइज्ड इन 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, on the basis of requirement of an organism, ठीक है, on the basis of requirement of body of an organism, एक organisms की body को, body of an organism, ठीक है, एक organisms की body को कितना required है किसकी, न्यूट्रिएंट्स की, उसके बिहाफ पे इनको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट वन इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड द अनदर वन इज व्हाट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, यहाँ पे हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइट, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग उसको कितने रिक्वायरमेंट्स हैं न्यूट्रिएंट्स की, उसके बिहाफ पे कैटेगराइज किया गया है। देखिए मैक्रो मीन्स लार्ज एंड न्यूट्रिएंट्स मीन्स यहाँ पे ये क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन लार्ज अमाउंट, ठीक है, या मैक्रो मतलब बड़ी। तो यहाँ पे क्या है, रिक्वायरमेंट जो है इनकी किसमें है, एक बड़ी क्वांटिटी में है, ठीक है, इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। तो ये कौन से वाले न्यूट्रिएंट्स हुए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। वही हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, देन ये कौन से न्यूट्रिएंट्स होंगे, इनकी जो रिक्वायरमेंट होगी बॉडी को, राइट, रिक्वायरमेंट जो होगी बॉडी को वो किसमें होगी, इन स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। इनकी जो हमें जो रिक्वायरमेंट है वो किसमें होगी, स्मॉल क्वांटिटी में होगी। सच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स विल बी कंसिडर एज व्हाट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब देखिए मेनली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, ये कितने टाइप्स के हैं, हमने 2 में पढ़ लिए, ठीक है। लेकिन नाउ दिस माइक्रो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये कितने टाइप्स में क्लासिफाई होते हैं, दे आर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स, while जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। तो इन दोनों को मिलाकर के जो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं जनरली वो कितने टाइप्स के बनते हैं, 7 टाइप्स, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स आर कैटेगराइज, मेनली हमने सिर्फ बिहाफ पे कि ज्यादा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है या कम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है बाय एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी की, उसको कितनी रिक्वायरमेंट है उसके बिहाफ पे 2 कैटेगरीज में थे। लेकिन टोटल ओवरऑल न्यूट्रिएंट्स आर मेनली ऑफ 7 टाइप nutrients, in which 5 types come in the category of macro, while the 2 types come in the category of micronutrients, ठीक है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो जो 5 न्यूट्रिएंट्स हैं जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के पार्ट है वो कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे आई एम राइटिंग, फर्स्ट इज सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होता है वो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। हाई एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बाद में सेकंड हाईएस्ट जो एनर्जी यील्डिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं फैट्स होते हैं। उसके बाद में प्रोटीन्स आते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स। इसके बाद में जो 4th कैटेगरी आती है दैट इज फाइबर्स, राइट। ये किस में आते हैं, फाइबर्स में आते हैं, जो हम फ्रूट्स यानी कि जो रॉ वेजिटेबल्स या रॉ फ्रूट्स होते हैं जिन्हें हम सैलेड्स बोलते हैं उन वो इस कैटेगरीज में आते हैं, फाइबर्स, ठीक है, FI। इसके बाद में जो नेक्स्ट है फिफ्थ इज वाटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ वो जो 2 न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट तो होगी लेकिन इनके जितने डोज में नहीं चाहिए, जितने हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी थी उनसे कम अमाउंट्स में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तो वो कौन कौन से होंगे, दे विल बी व्हाट, मिनरल्स and vitamins, ठीक है। तो मिनरल्स एंड vitamins they are will be in the category of what, micronutrients, ठीक। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, इतना तो हमें पढ़ना है। ये हमें एक बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे कंप्लीट इनका जो केमिकल एंड जो पूरा का पूरा जो केमिकल स्ट्रक्चर्स के साथ में हम रिलेट करेंगे, इनकी कंप्लीट फिजियोलॉजी जो हम डिटेल करेंगे, मेटाबॉलिक पाथवे भी हम इनका डिस्कस करेंगे, तो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें डिस्कस नहीं करना है इस चैप्टर में। तो यहाँ पे ये जो फाइबर्स हैं और जो H2O है, ठीक है,
फाइबर्स मेनली मैंने आपको बताया था कि जितने भी रॉ वेजिटेबल्स होते हैं या रॉ फ्रूट्स होते हैं दे विल बी इन द कैटेगरी ऑफ फाइबर्स, ठीक है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स है या फूड, द फूड विच विल बी इन द कैटेगरी ऑफ फाइबर्स, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, दे आर ऑल नोन एज व्हाट, रफेज। इनको क्या बोलेंगे हम, रफेज। इनको फाइबर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास में बहुत ज्यादा क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। अगर आप किसी भी फ्रूट्स को इनडायरेक्टली इनहेल करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लॉट ऑफ फाइबर्स होते हैं एंड दीज फाइबर्स जनरली विल हेल्प टू लुब्रिकेट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर हम कच्चे सलाद या कच्चे फ्रूट्स या कच्चे सब्जियां गेन करते हैं देन दे कंटेन अ लॉट ऑफ फाइबर्स इन देयर क्वांटिटी एंड दे विल बी हेल्प अ लॉट इन द लुब्रिकेशंस इन अ डाइजेशन सिस्टम, ठीक है। तो इसीलिए एक एडवाइस भी किया जाता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स को इनहेल करना चाहिए डायरेक्टली, कंप्लीटली। वी शुड नॉट टेक इन द फॉर्म ऑफ जूसेस, हमें जूस के फॉर्म में नहीं लेना चाहिए क्योंकि जूस में क्या होते हैं, जो उनके फाइबर्स होते हैं वी आर नॉट एबल टू ईट दैम, ठीक है, हमें सिर्फ उनका लिक्विड कंटेंट मिलता है पीने के लिए, ठीक। अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, H2O, वाटर की। देखिए बॉडी को सबसे ज्यादा, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख देती हूँ तो ये गलत नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट हमें किसकी होगी, कार्बोहाइड्रेट की। हाई एनर्जी यील्डिंग है ये, कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है, देन फैट, देन प्रोटीन्स, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की बॉडी को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, देन फैट। अगर कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में नहीं अवेलेबल है देन जो कार्बोहाइड्रेट पहले से फैट में कन्वर्टेड हो चुके हैं, नाउ द बॉडी विल यूटिलाइज द फैट मॉलिक्यूल्स एंड उसके बाद में लास्ट में सबसे ज्यादा अगर फैट्स भी बॉडी के अंदर नहीं होते देन द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विल बी यूटिलाइज फॉर द डाइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फाइबर्स हमने डिस्कस कर लिया क्योंकि इसमें कौन आते हैं, रफेज आते हैं। जितने भी रॉ वेजिटेबल्स या रॉ फ्रूट्स होते हैं दे विल बी द पार्ट ऑफ फाइबर्स। अब हम यहाँ पे एक चीज है वाटर, ठीक है। देखिए वाटर की मैं अगर बात करती हूँ तो दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता है USDA, राइट। USDA मीन्स यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। इसने इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में ही कैटेगराइज किया है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो जो वाटर है वो किसके अंदर में आता है, इसी में आता है, ठीक है। इसने बोला है कि यस इट शुड बी द पार्ट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्योंकि हमारी या किसी भी एक लिविंग ऑर्गेन्स की जो बॉडी का पार्ट है वो नियर अबाउट 70 to 75% वाटर से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। और हर एक ऑर्गेन्स को वाटर तो चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पे दूसरी एक है यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ के अकॉर्डिंग, यूनिसेफ मीन्स यूनाइटेड नेशन ऑफ इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो वाटर है इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट। इसने इसको कंसिडर नहीं किया है क्योंकि वाटर डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रिएंट्स, इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते इसके अकॉर्डिंग। लेकिन जो USDA है उसने इसके बेसिस पे, क्योंकि बॉडी का जो हम ये कह सकते हैं कि 70 to 75% बॉडी पार्ट्स इज कम्प्लीटली कंसिस्ट बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस it will be considered in the macronutrients while according to UNICEF it will not be considered in the category of macronutrients, ठीक है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करने जाएंगे कि ये किस तरीके से हाउ दे विल बी द पार्ट ऑफ हाई एनर्जी यील्डिंग कैटेगरीज। देन अभी हमने पढ़ा न्यूट्रिएंट्स के बारे में, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। अब देखिए कोई भी फूड मॉलिक्यूल्स है, अभी मैंने एक वर्ड बोला मॉलिक्यूल्स, राइट। तो सिंपली ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर मेड अप बाय व्हाट, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करना है किसके बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में। एंड दीज ऑल मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड बाय एन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो दैट्स व्हाई दे विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। On the basis of this, these molecules again will be categorized in two categories, right? Same things. कुछ मॉलिक्यूल्स तो ऐसे होंगे जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में होंगे, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल से बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगी उनकी, राइट। एंड सम मॉलिक्यूल्स दोज आर रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिजम्स, दे विल बी ऑफ वेरी सिंपल फॉर्म, ठीक है। सो दे विल बी, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनका जो क्लासिफिकेशन हुआ है, जो कैटेगराइज हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्म, ठीक है। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे देन दे विल बी कंसीडर एज व्हाट, मैक्रो मॉलिक्यूल। अभी हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लिखा था, नाउ वी आर राइटिंग हियर व्हाट, मैक्रो मॉलिक्यूल, राइट। एंड सेकंड थिंग हियर, अगर वहां पे हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लिखा था, हियर द सिंपल फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखिए कौन से तो ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो मैक्रो होंगे। मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब ये वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एंड यहाँ पे जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल बी द सिंपल मॉलिक्यूल्स, ठीक है।
एग्जाम्पल हम राइटिंग हेयर सच एज कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी पॉलीसेकेराइड्स में आने वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल बी द टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड्स में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन द केस ऑफ एग्जाम्पल सपोज स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, राइट, ग्लाइकोजन, ग्लूटिन प्रोटीन होती है जो एक दैट इज प्रेजेंट इन द व्हीट, ठीक है, एक्सेट्रा, दे ऑल आर द टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। Here हम राइटिंग द माइक्रोमोलिक्यूल्स, दोज आर वेरी सिंपल फॉर्म, ठीक है, इन वेरी सिंपल जो उनका अरेंजमेंट होता है। जैसे कि अगर यहीं पे हम स्टार्च की बात करते हैं तो स्टार्च कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो उसके सिंपल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होंगे, जैसे ग्लूकोज, राइट, तो ग्लूकोज है। ऐसे प्रोटीन मैंने लिखा था तो प्रोटीन की भी सिंपल फॉर्म क्या होगी, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, तो ये क्या होगी, अमाइनो एसिड, राइट। ऐसे ही अगर हम फैट्स की सिंपल फॉर्म की बात करते हैं तो वो क्या होगी, ग्लिसरॉल्स होगी, ठीक है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ये क्या है, इनके सिंपल फॉर्म है इन माइक्रोमोलिक्यूल्स का, और ये क्या है, एग्जांपल है मैक्रोमोलिक्यूल्स के। देखिए जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं दे कैन नॉट बी डायरेक्टली यूटिलाइज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, व्हाइल द माइक्रोमोलिक्यूल्स दे कैन बी डायरेक्टली engulfed by an organism in their original form। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो इनकी फॉर्म है, जो बॉडी है, चलिए ऑर्गेनिजम्स तो उनको ले सकता है, हम लोग आटा चावल दाल सब कुछ एक साथ खा सकते हैं, ठीक है, लेकिन दैट डिपेंड्स कि हमारे जो बॉडी सेल्स होंगे अब वो उनको किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ इन द केस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स बॉडी जो होगी, ठीक है, बॉडी कैन नॉट बी व्हाट, कैन नॉट take, right, cannot you could say the cannot take with the one, ठीक है, cannot take or utilize, ठीक है, or utilize in their original form। आया समझ में, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में बॉडी उनको न तो ले सकती है न ही उनको यूटिलाइज कर सकती है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। लेकिन यहाँ जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं बॉडी कैन बी, ठीक है, कैन इजीली अपटेक, ठीक है, या इनटेक इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है। तो ये क्या है, ये है माइक्रोमोलिक्यूल। देखिए बॉडी जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, इनको इजीली वो क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है, अपनी बॉडी के अंदर में इजीली ले सकती है, उसे तो हमने माइक्रोमोलिक्यूल नाम दिया। लेकिन जो यहाँ पे मैक्रोमोलिक्यूल्स है बॉडी ने इनको डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं किया है, नहीं तो उनको इनटेक किया है इनसाइड द मतलब कंप्लीट बॉडी के अंदर में। क्यों नहीं कर रही है बॉडी इनको डायरेक्टली यूटिलाइज, ठीक है, क्योंकि ये कैसे है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, और हमारे जो सेल्स होते हैं वो बहुत सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है, और जो सेल्स होते हैं दे जस्ट नो ओनली द सिंपल फॉर्म ऑफ द फूड और द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनके ओरिजिनल फॉर्म में तो नहीं जा सकते, लेकिन किसी फॉर्म में तो जाएंगे ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ ठीक है, नाउ इन देयर ओरिजिनल फॉर्म में तो वो नहीं जा सकते हैं, बट बॉडी विल व्हाट इट विल बी डू, नाउ द बॉडी विल बी कंप्लीटली broken down the complex food molecule into the simpler molecules। यानी कि अभी जो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे अभी क्या हो जाएंगे, ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है। बॉडी विल यूटिलाइज, ओरिजिनल फॉर्म में तो यूटिलाइज नहीं किया ना, बॉडी विल यूटिलाइज फर्स्ट ऑफ ऑल बाय यूटिलाइज बाय द ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ व्हाट, कॉम्प्लेक्स। बॉडी इनको क्या करेगी, सबसे पहले जो इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगी, ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म से इनटू सिंपलर फूड में क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी इनटू सिंपल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे तो डायरेक्टली क्या हो सकते हैं, इजीली यूटिलाइज हो सकते हैं। हाँ, इन द केस ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन जैसे कि ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का अगर ब्रेकडाउन होगा तो फिर क्या बनेगा, उसमें पायरुविक एसिड या लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मेशन होगा दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ डाइजेशन, दैट विल द पार्ट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो ये वर्ड लिखा है कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, राइट, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ व्हाट, मॉलिक्यूल्स इनटू द सिंपलर फॉर्म, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन। नाउ वी कम ऑन आवर मेन टॉपिक दैट इज व्हाट, डाइजेशन। तो डाइजेशन का मीन्स क्या हुआ, बॉडी ने जितने भी ये कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स थे, बॉडी सेल्स दे डोंट नो हाउ दे विल हैव टू बी यूटिलाइज्ड
First of all, the body cells will convert all the complex form of the molecules into the simple food molecules. And this process of conversion of complex food molecule into the simple food molecules, it will be considered as what? Digestion. तो हमें स्टार्ट क्या करना है? डाइजेशन. ठीक है, तो डाइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन या तो आप ये भी लिख सकते हैं, अनदर यू मे राइट, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? द प्रोसेस इन विच द कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स are being to be converted into the simpler food form of molecules will be considered as what? Digestion. ठीक है, और you may write conversion of complex food molecules into simple molecules. ठीक है, simple फूड मॉलिक्यूल. इसे हम क्या कहेंगे? डाइजेशन कहेंगे. ठीक है, डाइजेशन जो प्रोसेस होती है दैट इज या वो सिस्टम जिसके अंदर में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है. ठीक है, द सिस्टम विल बी नोन एज व्हाट? डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, तो वो सिस्टम जिसके अंदर ये डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है, द सिस्टम इज नोन एज व्हाट? डाइजेस्टिव सिस्टम. उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम. अब हमें क्या पढ़ना है? नाउ विल हैव टू डिस्कस द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर में वो प्रोसेस कैसे होती है, और जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कितने ऑर्गन से मिलकर के बनाता है. हमें पता है ना कि सेल से मिलकर टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से फिर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है. तो ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? एक ऑर्गन सिस्टम है. तो यहाँ पे क्या होंगे? वेरियस ऑर्गन्स विल बी इन्वॉल्व टू मेक दिस. ठीक है, तो हमें उन ऑर्गन्स के बारे में और उससे पहले हमें कि वो कौन कौन सी जो प्रोसेस हैं जो डाइजेशन को कंप्लीट कराती हैं, विल हैव टू डिस्कस नाउ. राइट, तो अब हमें क्या डिस्कस करना है? प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. ठीक है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. ठीक है, देखिए अगर हम डाइजेशन प्रोसेस के स्टार्टिंग के जो फर्स्ट कॉमन जो प्रोसेस है उनको डिस्कस करते हैं, देन डाइजेशन प्रोसेस. ठीक है, कंप्लीट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होती है वो हम अभी थोड़ी देर डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम क्या करने जा रहे हैं? प्रोसेस को. ठीक है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन मेनली इन्वॉल्व्स राइट इन 5 स्टेजेस. ठीक है, और वो स्टेजेस जो 5 स्टेप्स है वो कौन कौन से? सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज व्हाट? इंजेशन. राइट, इंजेशन. Second step, that is what? Digestion. Right? And the third one is what? Absorption. And the fourth one is assimilation. And the last one is egestion. देखिए ये टोटल 5 स्टेप्स हैं जिनमें डाइजेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो स्टेप है वो क्या है? इंजेशन. ठीक है, इंजेशन का मतलब होता है एंट्री होना. ठीक है, किसकी? फूड की. ठीक है, एंट्री ऑफ फूड मॉलिक्यूल. ठीक है, और एंट्री फूड मॉलिक्यूल की कहाँ हो रही है? इन दी एलिमेंट्री कैनाल. और एलिमेंट्री कैनाल क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है. तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि एंट्री ऑफ द फूड मॉलिक्यूल इन दी डाइजेस्टिव सिस्टम. तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंजेशन बोलते हैं. ठीक है, ये जो इंजेशन है इट इज मेनली ऑफ 2 टाइप्स. ठीक है, जो इंजेशन होगा वो 2 फॉर्म्स में हमें देखने को मिलता है. ठीक है, सबसे फर्स्ट इज व्हाट? मैक्रोफेगी. And the second one is microphagy. Microphagy, right? देखिए मैक्रो सेम अगेन, लार्ज. फैगी मीन्स होता है एनगल्फ. ठीक है, और एनगल्फ का मतलब इनहेल कर जाना. ठीक है, जो मैक्रोफेगी है वो किसमें देखने को मिलता है? हमें जितने भी हमारे हायर एनिमल्स होते हैं. ठीक है, मैक्रोफेगी अकर्स इन दी हायर एनिमल्स. यानी कि जो मोड ऑफ इंजेशन है वो हायर एनिमल्स में कौन सा होता है? मैक्रोफेगी होता है. ठीक है, द मोड ऑफ इंजेशन इन दी हायर एनिमल्स ठीक है इज नोन एज व्हाट? मैक्रोफेगी. वहीं पे अगर हम बात करते हैं माइक्रोफेगी किसमें देखने को मिलेगा हमें? लोअर एनिमल्स में. ठीक है, यहाँ लोअर
ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आप कह सकते हैं इन्हें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा है, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे आप लिख सकते हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, राइट। दे ऑल विल बी इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट, मैक्रोफेगी। इनमें जो इंजेक्शन होगा, इंजेक्शन ऑफ फूड मॉलिक्यूल होगा, वो कौन, उसे क्या कहेंगे हम, मैक्रोफेगी। वहीं पे जो हायर एनिमल्स होंगे ये कौन से हैं, लाइक एनिमल्स, जिसमें ह्यूमन बींग्स आते हैं या कैटल्स आते हैं, ठीक है। ये हुआ किसके बारे में, इंजेक्शन के बारे में। इंजेक्शन का मतलब हुआ एंट्री ऑफ फूड मॉलिक्यूल, ठीक है। उसे हमने क्या नाम दिया है, यहाँ पे इंजेक्शन का नाम दिया है। नेक्स्ट इज व्हाट, डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन का मतलब क्या होगा, डाइजेशन का मतलब होगा कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन किसका, कन्वर्जन ऑफ, वही जो हमने डेफिनेशन लिखी थी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल का स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो कन्वर्जन होगा वो किसका होगा, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल का इनटू सिंपलर फूड मॉलिक्यूल, ठीक है। इसे ही हम क्या कहेंगे, डाइजेशन कहेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं ब्रेक डाउन होगा यहाँ पे, ठीक है। बेटर वर्ड होगा यहाँ पे, अगर आप कन्वर्जन की जगह पे क्या लिखो, ब्रेक डाउन लिखो, ठीक है। तो ब्रेक डाउन किसमें, डाइजेशन में, ठीक। नेक्स्ट आता है क्या, एब्जॉर्प्शन। जितना भी ब्रेक डाउन हुआ है, जितने भी फूड मॉलिक्यूल्स का कन्वर्जन हुआ है फ्रॉम देयर कॉम्प्लेक्स फॉर्म इनटू देयर सिंपलर फॉर्म, ठीक है। अब वो सारे के सारे डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स विल बी एब्सॉर्ब, ठीक है। उनको कौन एब्सॉर्ब करेंगे, कौन, ब्लड वेन्स एब्सॉर्ब करेंगे, ठीक है। किस लिए एब्सॉर्ब करेंगे, ताकि जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स होंगे वो उन तक क्या हो सके, पहुंच सके। तो उसे हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन कहेंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट फोर्थ स्टेप आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, एसिमिलेशन का मतलब है कि जितना भी, अब सपोज यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हार्ट है, लीवर है, या फिर कोई भी हम एक बॉडी ऑर्गन का नाम ले सकते हैं, हम अपने मसल्स ले सकते हैं, ठीक है। मसल्स में सपोज वो डाइजेस्टेड फूड क्या हुआ, पहुंच चुका है विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन आफ्टर द डाइजेशन प्रोसेस बाय द ब्लड वेन्स। अब क्या होगा कि उनमें जो फूड जूसेस हैं उनमें जितना भी न्यूट्रिएंट्स कंटेन है, नाउ द डाइजेस्टेड फूड विल बी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी सेल्स और बॉडी ऑर्गन्स इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। वो एटीपी के फॉर्म में क्या हो रहा है, यूटिलाइज कर रहे हैं, और वही एटीपी जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगी दैट विल बी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी सेल्स टू वर्कआउट। जितना भी वर्किंग या फंक्शनिंग के लिए वही जो एब्सॉर्ब फूड होगा, डाइजेस्टेड फूड, दैट विल बी यूटिलाइज्ड बाय द वेरियस ऑर्गन्स। इसके बाद में लास्ट स्टेप आता है क्या, इजेशन। हम इन सारे प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ क्या चल रहा है, इंट्रोफेज चल रहा है। तो इजेशन में क्या होता है, इजेशन में जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, यानी कि आफ्टर द डाइजेशन जितना भी जो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है, तो जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, नाउ इट विल बी एक्सक्रीट आउट और इट विल बी इजेक्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एनस द ऑल द अनडाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स विल गेट रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। इसे हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा हम डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, जो प्रोसेस हो रही हैं, ये प्रोसेस कहाँ हो रही हैं। तो ऑल द प्रोसेसेस आर बीइंग कैरीड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये किसमें हो रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रही है, ठीक है। वो डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या है, मेनली दैट इज व्हाट, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। पूरा का पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल है इसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल की अगर मैं बात करती हूँ तो ये क्या है, एक थिन लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है, एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग, ठीक है, ट्यूब लाइक मस्कुलर ऑर्गन है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब इसकी अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, कितने कितने नियर अबाउट, इसमें बोला ना लॉन्ग, तो नियर अबाउट से 8 से लेकर के 10 मीटर तक क्या होती है, 8 to 10 मीटर लॉन्ग, इतनी लंबी होती है ये, ठीक है। इसके बाद में इसके पास क्या होते हैं, इसके पास में 2 ओपनिंग पोर होते हैं, ठीक है। इट हैज 2 ओपनिंग पोर्स, ठीक है। अब वो जो 2 ओपनिंग पोर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, सबसे फर्स्ट जो इसका ओपनिंग पोर होता है दैट इज नोन एज व्हाट, एंटीरियर पोर। पहले हम पोर को क्या बोलेंगे, एंटीरियर पोर। और ये एंटीरियर पोर कहाँ से शुरू होता है, ये होता है माउथ और बक्कल कैविटी वाला रीजन, ठीक है। तो यू मे राइट इट कि ये यहां से स्टार्ट होता है, माउथ, और यू मे राइट इट बक्कल कैविटी, ठीक है, और ओरल कैविटी। लेकिन और इसका ये कौन सा होता है, लास्ट वाला पोर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पोस्टीरियर पोर, ठीक है।
ये जो पोस्टीरियर पोर है ये कौन सा पार्ट होगा इसके अंदर में, ये भी एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है। नाउ इट कंटेन्स एनस, ठीक है, ये एनस का है, ठीक है। तो पोस्टीरियर पोर जो है इट कंटेन्स, इट हैज एनस व्हाइल द एंटीरियर पोर हैज द माउथ, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से, मैंने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम है एंड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गन्स, ठीक है, तो वो ऑर्गन से मिलकर के बना होता है। अब हमें डिस्कस करना है कि कौन कौन से मेनली इसमें ऑर्गन्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वो पूरी की पूरी किस में होंगी, एलिमेंट्री कैनाल में ही इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऑर्गन होगा वो क्या है हमारा, यहाँ पे यू मे राइट द ऑर्गन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। कौन कौन से वो वेरियस ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। वो ऑर्गन में सबसे फर्स्ट ऑर्गन है माउथ, ठीक है। सेकंड जो ऑर्गन है माउथ के बाद या बक्कल कैविटी के बाद में, दैट इज व्हाट, फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स एक कॉमन पासेस होता है टू एंट्री फॉर बोथ फूड एज वेल एज द एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हवा और फूड दोनों को जो एंट्री कराती है। एंड लेटर ऑन दिस फेरिंग्स के बाद में, ठीक है, फेरिंग्स डिवाइडेड इन टू पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स, एक होती है जो सिर्फ और सिर्फ फूड मॉलिक्यूल्स को एंट्री देती है और सेकंड होती है जो एयर मॉलिक्यूल्स को एंट्री देती है, यानी कि विंड पाइप एंड फूड पाइप। तो जो फूड पाइप है उसे हम क्या बोलेंगे, ईसोफेगस, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद में नेक्स्ट यहाँ पे जो एक ऑर्गन है वो क्या आएगा, दैट इज व्हाट, स्टमक, ठीक है। स्टमक के बाद में नेक्स्ट ऑर्गन जो क्या होगा, इंटेस्टाइन, ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गन इज व्हाट, इंटेस्टाइन। रिमेम्बर वन थिंग, ये जो इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन भी किसने, दो तरीके के इंटेस्टाइन हमारी बॉडी में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से होंगे, सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन साइज में ये लार्ज इंटेस्टाइन से कहीं ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है, एंड इट इज व्हाट, लार्ज इंटेस्टाइन। इसका साइज नियर अबाउट ओनली 2 मीटर तक का होता है, लेकिन इसकी जो वॉल होती है वो काफी मोटी होती है, जिसकी वजह से इसका नाम दिया गया है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अगेन दिस स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके पास में भी क्या होते हैं, 3 रीजन्स होते हैं। मैं यहाँ पे इसको रब कर रही हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे सके, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन अगेन इट हैज 3 मेन पार्ट्स, ठीक है। इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूडिनम, second one is jejunum and the third one is ileum. We will discuss all these parts in detail. While जो large intestine है, it has again 3 main parts. इसके भी कितने parts होते हैं, 3, ठीक है। और वो 3 main parts कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले कोलोन, ठीक है, कोलोन। और ये कोलोन जो होता है वापस से इट हैज 3 अनदर पार्ट्स, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड ट्रांसवर्स कोलोन, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर, ठीक है। इसके बाद में रेक्टम एंड सीकम, ठीक है। मेनली जो इलियम पार्ट है वो यहाँ सीकम से कनेक्ट होता है, ठीक है। इलियम क्या है, इसका सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो किसके साथ कनेक्ट होता है, सीकम के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। और सीकम से ठीक पास में क्या कनेक्ट होती है, जो नेक्स्ट ऑर्गन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो अभी नाउअडेज एक क्या है, अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, क्योंकि अब ज्यादातर ह्यूमन बींग्स आर कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स। They had completely denied to take the cellulosic material और plant containing material, so इसीलिए इसका कोई भी यूज नहीं है, क्योंकि मेनली अपेंडिक्स का फंक्शन होता है जस्ट टू डाइजेस्ट दी सेलुलोजिक मटेरियल, ठीक है। तो इसीलिए अभी कैसी हो गई है, वेस्टिजियल ऑर्गन हो गई है, ठीक है। तो सीकम और ये इलियम कनेक्ट होती है आपस में, ठीक है। इसके बाद में फिर नेक्स्ट कोलन और बाद में क्या होता है, रेक्टम, और रेक्टम किसके साथ कनेक्ट होता है, एनस के साथ में, ठीक है। तो ये क्या है, कंप्लीटली इट इज अबाउट दी ऑर्गन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो ये तो थे ऑर्गन्स। अब इसमें क्या बचते हैं, कुछ ग्लैंड्स भी बचते हैं, ठीक है। और वो ग्लैंड्स में आते हैं कौन कौन से, लिवर एंड पेनक्रियास, ठीक है। लिवर एंड पेनक्रियास विल बी द पार्ट ऑफ ऑर्गन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आप उनको चाहे तो लिख सकते हैं कहीं भी साइड में, ठीक है।
कि वो liver and pancreas will also be the part of organs of alimentary canal, but here I didn't write because they are not organs, they are the glands. So हम यहाँ पे अगर next heading बनाते हैं कि what will be the glands of the alimentary canal, तो उसमें क्या आएंगे, ठीक है, digestive glands नहीं आएंगे, they will be the part of liver and pancreas, apart the digestive glands, that are the salivary glands, ठीक है. So it was all about the process of digestion along with the organs that are involved in the alimentary canal in a brief only. Now we'll have to discuss in detail one by one in the another class. Thanks.